lecture today. So what we have discussed yesterday was the effect of potential on the photoelectric current. What is the effect of the potential on the photoelectric current? We have studied about the saturation current, and for a particular frequency, what will be the stopping potential for different intensities. This graph we have seen. You see my cursor, this graph we have seen. Okay. Stopping potential remains same if the frequency is not varied. And K max, the maximum kinetic energy of the photoelectron, is equal to E times V0. V0 is the stopping potential. Stopping potential stops even the most efficient, most energetic photoelectron. Okay. So what we concluded, for a given frequency of the incident radiation, the stopping potential is independent of its intensity. Today we'll be discussing the effect of frequency on the stopping potential. What happens when we change the frequency? Okay. So what we do, we suitably adjust same intensity. We keep the intensity same of the light radiation and keep on changing the frequencies. So we have to take readings at various frequency. Okay. And see, nu 1, nu 2, nu 3 are three frequencies given. Okay. At these three frequencies and keeping the intensity constant, we get same saturation current for all the three. Saturation current is same for all the three frequencies. Okay. Because the intensity is kept same. Now, if the frequency is varied, you see the stopping potential are V01, V02 and V03. The stopping potential V03 is more negative for nu 3, the frequency nu 3. And less negative for frequency nu 1. What do we conclude? So in graph it is shown that nu 3 is greater than nu 2 is greater than nu 1. So when we increase the frequency, the stopping potential is increased. V03 value in the magnitude is more than V01. Okay. So graph is between photoelectric current and collector plate potential. Graph is between photoelectric current and collector plate potential, right? अब ये ग्राफ से क्या पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ज्यादा होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, ठीक है। एंड इसीलिए हमको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है उसको स्टॉप करने के लिए। उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा पोटेंशियल की स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, मोर नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल में, ठीक है। तो अगर डिफरेंट मेटल्स के लिए, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में हम ग्राफ खींचे अलग अलग मेटल्स के लिए, तो अपने को स्ट्रेट लाइन मिलता है। किस तरीके से? मेटल ए है, मेटल बी है, वी सी द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो इस ग्राफ से क्या पता चलता है अपने को? इस ग्राफ से पता चलता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है लीनियरली वेरी करता है फ्रीक्वेंसी के साथ। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वाई एक्सेस पे प्लॉट किया गया है या एक्स एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट की गई है। तो V0 varies linearly with the frequency of the incident radiation for a given material। और अगर मटेरियल बदल देंगे तो उसका ग्राफ जो उसके पैरेलली या किसी और तरीके से आ जाएगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन रहेगा। और there exists a certain minimum cutoff frequency nu 0 for which the stopping potential is 0। एक कट ऑफ पोटेंशियल रहेगा, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी जिससे कम पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा। देखो ये nu 0 इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई और nu 0 डैश इस मेटल बी की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0। इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है।
क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं स्टार्ट होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, बराबर। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने लिए, फ्रीक्वेंसी हमने वेरी की, मेटल भी चेंज किया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर उसका इफेक्ट देखा, ठीक है। तो क्या होता है, इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होता है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। के मैक्स किस पे वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ, लेकिन ये जो है इंटेंसिटी के हिसाब से वेरी नहीं करता, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी को बढ़ाने या कम करने से मैक्सिमम के मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। For a particular frequency nu of the incident radiation lower than the cutoff frequency nu 0, no photoelectric emission is possible. अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से कम है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज्यादा होने पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है थोड़ी सी, और अगर हम चाहें कि इंटेंसिटी बढ़ा दें लाइट की और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड इट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट जो किए गए इनके फीचर्स इन्होंने समराइज किए हुए हैं। क्या किया है, पहला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो मिल रही है, हमने जो है माइक्रोमीटर लगा के जो मेजर किया, वो जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, याद रखना। फोटो इफेक्ट कब होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी देयर इफ द, वो जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसकी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट उसके ऊपर डाली जाएगी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो मिलेगी वो इंटेंसिटी कम या ज्यादा करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या मिला अपने को, saturation current is found to be proportional to the intensity of the incident radiation. saturation जो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे इंटेंसिटी कम कर देंगे, ठीक है, तो सैचुरेशन करंट जो है उसके हिसाब से घटेगी बढ़ेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है बिलो विच नो एमिशन टेक्स प्लेस। ऑल these three phenomena shows that the light is an electromagnetic wave, means 3D वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों है इसमें। ये तीन फिनोमिना से अपने को ये आइडिया लगा, लाइट इज अ वेव। तो वेव पिक्चर ऑफ लाइट स्ट्रेंथन हुई इससे। उसके बाद लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैक्सवेल ने पता लगाया, ठीक है। और मैक्सवेल ने जो है, हर्ट्स ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस भी कर दी, उससे उसकी थ्योरी को और ताकत मिली, वेव थ्योरी को, ठीक है। तो वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर सकती है, वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है आपको कॉमन लाइफ में, कोई बताएगा, डेली लाइफ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। जब आप मॉल में जाते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, खुलता है कि नहीं खुलता है। तो एक्चुअली क्या है कि जो जब एक लेजर करंट टाइप की जो, या लेजर वेव टाइप की जो होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एक सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर पे पड़ती रहती है, तो जो है वो गेट बंद रहता है। जैसे ही आप बीच में आते हैं वो कट हो जाता है पाथ, मतलब वो जो लाइट है वो सेंसर पे पड़ना बंद हो जाता है, और उसके हिसाब से उसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि दरवाजा उसके हिसाब से खुल जाएगा, बराबर है। मतलब
दरवाजे को खोलने वाला एक स्विच ऑन हो जाएगा, उससे वो दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है। और जो आप यहाँ सूरत में रहते हैं तो साड़ियाँ बनती है, यहाँ पे साड़ियाँ जो चलती हैं, वो जो मशीन में साड़ियाँ रोल्स के ऊपर चलती रहती हैं, मशीन्स के ऊपर बड़ी लंबी लंबी साड़ियाँ होती हैं और बहुत लंबे लंबे कपड़ों के थान होते हैं। तो वो जो है एक साइड में खिसक जाएंगे अगर रोल पे, तो वो खिसकते चले जाएंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए कि एक लिमिट से बाहर ना जाए वो, वहां पे भी फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स यूज होते हैं। देयर इज वेरी वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना। तो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना जो है क्या एक्सप्लेन कर सकता है, जो वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर सकती है इस फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना को? तो भाई अकॉर्डिंग टू द वेव पिक्चर क्या कहती है? वो कहती है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसलिए ज़्यादा इंटेंसिटी होने से क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, जो कि हर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। मतलब वो वेव किसी इलेक्ट्रॉन पे पड़ रही होगी तो वो इलेक्ट्रॉन वेव ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो इस पिक्चर में क्या हुआ, इसमें इन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि जो के मैक्स है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे से जो निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो वो जो है के मैक्स इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा वेव पिक्चर कहती है। तो ऐसा तो होता नहीं है, हमारा एक्सपेरिमेंट तो दूसरी बात कहता है। बराबर है। और वेव थ्योरी ये कहती है कि सफिशिएंटली इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन ओवर सफिशिएंट टाइम, बहुत देर तक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की वेव को अगर हम जो है किसी सरफेस के ऊपर डालेंगे, दैट शुड बी एबल टू इम्पार्ट एनफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को एनफ एनर्जी दे देगी सो दैट दे एक्सीड द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो उसके वर्क फंक्शन के, मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करके वो फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चालू हो जाएगा, ऐसा कहती है वेव थ्योरी। ठीक है। तो वेव थ्योरी के हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। ज्यादा इंटेंसिटी की वेव को ज्यादा टाइम तक सरफेस पे डालने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ऐसा ये कहना चाहती है। लेकिन ये बात गलत है, ये हमने एक्सपेरिमेंट्स में देख लिया। ठीक है। So wave theory is unable to explain the most basic features of the photoelectric emission. ठीक है। अब आता है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द photoelectric effect. Einstein's photoelectric equation. What is that? तो आइंस्टाइन ने कहा कि रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स। आइंस्टाइन ने क्या कहा, रेडिएशन एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट यूनिट से बनी होती है, उनको क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। उनका नाम है फोटॉन। ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, फोटॉन बोलते हैं। तो जो एनर्जी होती है वो फोटॉन पैकेट्स के फॉर्म में होती है या क्वांटा के फॉर्म में होती है, एनर्जी के पैकेट होते हैं। ठीक है। ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी, जो ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी है उसकी वैल्यू एच न्यू होती है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू है, मान लो रेड लाइट का है फ्रीक्वेंसी न्यू रेड, और ब्लू लाइट का न्यू बी, ये फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं, और वेवलेंथ जो है भी अलग अलग होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, उनके जो फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। एच न्यू सबके लिए अलग अलग होगा, एच तो सेम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने से रेडिएशंस की जो फोटोनिक फोटॉन्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, अलग अलग होंगे। ठीक है। तो आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर जो है ये जो लिखी हुई है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एफ जीरो, ये कहाँ से आया? आइंस्टाइन क्या कहता है उसको हम यहाँ पे देख लेंगे जरा। सपोज एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, वी हैव ए फोटो सेंसिटिव सरफेस, फोटो सेंसिटिव
सरफेस, मतलब जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो सकता है वो हमारे पास में है, ठीक है। और उस फोटो सेंसिटिव सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन आएगा, इंसिडेंट रेडिएशन आएगा वो क्या आएगा, एच न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी से आ रहा है तो उसका फोटोन एच न्यू एनर्जी लिए हुए होगा। और वो फोटोन जो है अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाउंडेड है अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ आयन से, मींस इसको अंदर से बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो इसमें अंदर से बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मेटल के अंदर से बाहर निकाल लेने के लिए उसको वर्क फंक्शन फाई जीरो नामक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मान लो इतनी एनर्जी इस एच न्यू ने उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी थी, तो क्या करेगा एच न्यू, जो इनकमिंग रेडिएशन एच न्यू है वो किस किस काम आएगा। पहली बात तो इट विल ओवरकम द वर्क फंक्शन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स बॉन्डिंग फ्रॉम द आयंस, ठीक है। प्लस बॉन्डिंग नहीं है एक्चुअली, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में नहीं है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस है और उसको वो बाहर जाने नहीं देते हैं, ठीक है, आयंस के। तो ये वर्क फंक्शन कहलाता है। तो इतनी एनर्जी जो है बाहर निकल में आएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हिसाब से उसने जो है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया कि जो एनर्जी इनकमिंग है, इनकमिंग एनर्जी में फाई जीरो खर्चा हो जाता है, मतलब एच न्यू माइनस फाई जीरो जो है उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्चा हो जाता है। और बचता क्या है, बचता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोटो इलेक्ट्रॉन बची हुई एनर्जी के साथ निकल गया। वो जो बची हुई एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव जीरो, इट गिव्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि के मैक्स इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड with the maximum kinetic energy K max is equal to h nu minus 50, ठीक है। ये है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके हिसाब से मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो अंदर मेटल के बहुत गहराई में घुसा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने में और ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका, ठीक है। तो मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन विल एमर्ज विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये किसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका जो सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन है जिस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो बाहर ही बैठा हुआ है उसको मिल गया एच न्यू और वो फटाक से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। नाउ इक्वेशन दिस इज नोन एज द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, और के मैक्स डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। के मैक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, लीनियरली डिपेंड करता है। लीनियरली कैसे डिपेंड करता है, तो आप देख सकते हैं के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एफ जीरो, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंस है, अगर के मैक्स को वाई मान लो, तो के मैक्स को वाई मान लो तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन, ठीक है। तो y और x में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन जो अगर है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसे कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू वन। व्हाट ऑल दीज रिप्रेजेंट्स, ये सारे कर्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे कर्व स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्मूला लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y और x के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, बराबर है। याद रखना है कैसा आएगा, ये जो आएगा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो ये जो लाइन खींचेंगे वो इस तरीके से लाइन आएगी, इसका स्लोप m होगा, m स्लोप होगा लाइन का, और ये जो इंटरसेप्ट y एक्सिस से कट कर रहा है, तो वो जो होगा c होगा, ठीक है, c इंटरसेप्ट कट करेगा, बराबर। मतलब ये यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रखिए आप, x इक्वल टू जीरो रखिए तो y इज इक्वल टू c हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो है,
तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 0 यहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू c हो गया, तो y एक्सिस से इंटरसेप्ट कटा कितना c, तो ये जो अमाउंट है ये c है, समझ में आया? तो स्ट्रेट लाइन को ऐसे प्लॉट करते हैं, याद रखना इसको। तो कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यू सी दैट y एंड x हैव अ लीनियर रिलेशनशिप, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वही बात वो कह रहा है। कैसी रिलेशनशिप है यहाँ पे, लीनियर रिलेशनशिप है भैया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ग्राफ बना के। के मैक्स डिपेंड करता है न्यू पे लीनियरली, और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा के मैक्स नॉन निगेटिव होना चाहिए, के मैक्स नॉन निगेटिव होना चाहिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो के मैक्स जो है नॉन निगेटिव होने का मतलब है, पॉजिटिव होने का मतलब एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 50, ठीक है। एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 50, इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमएक्स इक्वेशन इफेक्ट तभी पॉसिबल होगा जब एच न्यू ग्रेटर देन 50 होगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो होगा। तो एच न्यू ग्रेटर देन 50 को आप लिख सकते हैं एच न्यू इज मस्ट बी ग्रेटर देन एच न्यू जीरो। ये 50 को हमने क्या लिखा, एच न्यू जीरो लिखा, तो एच एच कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। तो ये न्यू जीरो को क्या नाम देंगे, न्यू जीरो को हम बोलेंगे थ्री शोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू जीरो को क्या बोलेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्री शोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड न्यू जीरो 50 हमने क्या माना यहाँ पे, 50 इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, सो न्यू जीरो इज डिफाइंड एज 50 बाई एच। तो भाई हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्री शोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिजाइन हो गई कि उससे कम पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, थ्री शोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे, ठीक है। मोर ओवर और क्या पॉइंट है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल द ग्रेटर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी क्वांटा। कहने का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो अगर हम जो है ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी सरफेस पे डालेंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ज्यादा इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और एक बात होती है कि दिस प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है तुरंत, 10⁻⁹ सेकंड में होता है। और लो इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे हम समझे कि लो इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाएगी। लो इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि देर से स्टार्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दीज आर ऑल कंफ्यूजन्स, ठीक है। लो इंटेंसिटी डज नॉट मीन डिले इन द एमिशन, इंस्टेंटेनियस ही होता है हर वक्त, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, EV0, क्योंकि के मैक्स EV0 पढ़ा था ना हमने, तो के मैक्स की जगह EV0 लिख दिया, EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 50, ठीक है। तो ई से डिवाइड करो तो V0 इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस 50 बाई। अब यहाँ पे जो दो पैरामीटर हैं वो y और x समझो कौन से हैं, V0 एंड न्यू। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और न्यू के बीच में ग्राफ खींचे, if we draw the graph between the stopping potential V0 and nu, so as explained by me just now, that it is the equation of the straight line whose slope is h by e and whose intercept with y-axis is minus 50 by e। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, उसके हिसाब से जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पे कैसे वेरी करता है, किस तरह का ग्राफ होता है, प्लॉट करके बताओ। तो देखो अब प्लॉट किया मैंने, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये मैंने लाइन प्लॉट कर दी। देखो लीनियर रिलेशनशिप, उस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, एच अपॉन ई है, ये स्लोप जो है एच अपॉन ई है इसका, बराबर। और इंटरसेप्ट प्लस माइनस 50 बाई ई, तो ये इंटरसेप्ट जो है इस तरह इधर साइड में आएगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस 50 बाई 50 तो नेगेटिव होता नहीं है,
तो 50/E जो अमाउंट का ये निगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ पे कट करेगी, तो इसलिए ये यहाँ पे लाइन जाएगा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता तो ऊपर से जाता, निगेटिव इंटरसेप्ट वाई एक्सिस से है, तो वाई एक्सिस पे क्या है V0, तो ये निगेटिव एक्सिस की तरफ 50/E अमाउंट का कटिंग करेगी। ये जो अमाउंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है -50/E। इस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो भाई मिलिकन जो है, मिलिकन ने परफॉर्म किया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को स्ट्रेंथन किया, ठीक है। उसने उसको ताकत दी कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, ठीक है। He determined the value of Planck constant H। मिलिकन्स का क्या है मालूम है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है मिलिकन्स का, नेट पे पढ़ना उसको क्या है। So he determined the value of Planck constant H. This value was close to the value of Planck constant 6.626 into 10 to the power minus 34, determined in an entirely different constant। मतलब जो वैल्यू H की उसने निकाली वही वैल्यू H की सजेस्ट की थी यहाँ पे आइंस्टाइन ने, H की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को जो है वैलिड किया कि हाँ भाई ये बात सही कह रहे हैं, ठीक है। अब आता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये जो आइंस्टाइन ने बोला वही बात है। फोटोन आता है, क्या है फोटोन? क्वांटा ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी एच न्यू इज नोन एज द फोटोन। उसका मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम हो गया एच न्यू अपॉन सी। एच न्यू अपॉन सी इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, ठीक है। पार्टिकल लाइक बिहेवियर उसका होता है, और इस बात को कंफर्म किया ए एच कॉम्पटन ने। कॉम्पटन ने अपना स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स का ऑब्जर्वेशन किया कि एक्स रेज इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर करती हैं, और ये पता किया कि जो है ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो सही है, ए एच कॉम्पटन, ठीक है। तो भाई क्या समरी आई है इसकी? फोटोन के बारे में क्या कह सकते हैं? इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। अगर जो है अखिलेश, टेक केयर, in interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles called photons, ठीक है। अगर रेडिएशन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब किसी सरफेस पे रेडिएशन डाला जा रहा है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, तो रेडिएशन कैसे बिहेव करेगा? ऐसा बिहेव करेगा कि वो उसमें पार्टिकल नेचर है, ठीक है। हर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, और मोमेंटम क्या होता है? एच न्यू अपॉन सी होता है। और स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट स्पीड होती है उसकी, फोटोन की, ठीक है। All photons of light of a particular frequency nu or wavelength lambda has same energy। अगर एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट है, उसके फोटोन की सबकी एच न्यू की वैल्यू सेम रहेगी। एच न्यू मतलब एच सी अपॉन लैम्डा। मोमेंटम की वैल्यू भी सेम रहेगी, एच न्यू अपॉन सी, और वी कैन से एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। फिर फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ऐसा नहीं है चार्ज पार्टिकल हो, या चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, इसके लिए इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। अगर फोटोन और पार्टिकल का कोलिजन किया जाए, फोटोन और पार्टिकल में कोलिजन हो, तो उसका टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस तरीके से ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फोटोन एक रियल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेट अस सी एग्जांपल 11.1, monochromatic light of frequency 6 into 10 power 14 hertz is produced by laser। पावर इज दिस, पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इतने जूल पर सेकेंड। 2.0 इंटू 10 पावर -3 वाट को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 पावर -3 जूल पर सेकेंड की एनर्जी आ रही है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम? एनर्जी ऑफ ए फोटोन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर -34 लिया, न्यू की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर 14 ली एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो 3.98 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आंसर आ गया आपका। हाउ मनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स? बी पार्ट में कहता है कितने इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे, ठीक है।
मान लिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज कैपिटल एन, ठीक है। तो एन फोटोन जो है एमिट हो रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो एन फोटोन की एन एच न्यू होगी, और ये पर सेकंड है, इसलिए हम इसको हम बोल सकते हैं पावर, वाट। पावर जैसे मैंने बोला ना, पर सेकंड की बात होगी तो इसी बात को क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी पर सेकंड कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ है। तो हमने माना है कि एन नंबर ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड, एक सेकंड में। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं एनर्जी पर सेकंड दैट मीन्स पावर इक्वल टू एन एच न्यू, या एच न्यू क्या है, एच न्यू की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, ई, कैपिटल ई, तो एन इंटू ई, ठीक है। तो पावर इक्वल टू एन इंटू ई, एंड देयरफॉर इससे डिवाइड कर दिया ई से, एंड वी गेट 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। किसी किसी किताब में न्यू को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है हम यहाँ पे खत्म करते हैं, एग्जाम्पल 11.1, and tomorrow we will be doing some more examples on that, and after that we will be having the wave nature of matter, ठीक है। वेव नेचर क्या होता है, मैटर वेव नेचर कैसे करता है, वेव नेचर कैसे शो कर सकता है, ये बात हम देखेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय आफ्टर एग्जाम्पल। Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.